الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا بنانے والا ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور بے حساب درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ محض سلام کے طلبا، آپ کا اس کلاس نورانی قاعدہ شروع بار خیر مقدم ہے، اور آپ تمام طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ تمام اللہ کے فضل سے سب سے عظیم مشن پر ہیں، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے، اللہ کا پسندیدہ کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کو ہم تمام کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ ہم سب سے عظیم مشن پر ہیں۔ اس لیے ہمیں جتنی بھی پریشانیاں آئے، ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے، ہمیں جتنی بھی قربانی دینا پڑے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے دیں گے۔ اس کے بعد اس کا ثمرہ اللہ رب العالمین ہماری امید سے زیادہ ہمیں عطا کرے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اہل قرآن کو عزت دیتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے، رحمت ان پر نازل کرتا ہے، وہ جدھر جاتے ہیں سرخروئی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، کامیابی ان کے قدموں میں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس کی مثال ہے کہ صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخروئی عطا کی، دنیا کے اندر ان کو عزت و مقام دیا، اور آخر میں اس قرآن کو پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی و اللہ سے۔ یہ چیز ہمیں اس بات کا احساس دلائے گی کہ ہم اس کو پڑھتے وقت گھبرائے نہ، ہچکچائے نہ، پریشان نہ ہو، اور ہم محنت کرتے رہیں۔ اور محنت کرنے والوں کو، جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، جیسے ایک طالب علم نے کہا کہ عمر کا تقاضا کہ شاید مجھ سے حروف نہیں نکل رہے ہوں مجھے، یا جو ہے تو صحیح سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہو، تو اس میں عمر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لیکن کوئی انسان پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کی زبان سے نہیں نکلتا، اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو دوہرا اجر ملتا ہے، یعنی ایک حرف پر 20 نیکیاں ملتی ہیں، 10 پڑھنے کی اور 10 اس پر محنت و مشقت کرنے کی۔ تو آج ہمارا پہلا سبق مفردات، جس کے اندر مخارج الحروف، حروف کہاں سے نکلتے ہیں، ان کی آواز کیسی ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ اور گزشتہ اسباق کے اندر، دروس کے اندر، کلاسوں میں جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے، توجہ اس بات کی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کی مشق کریں، اس کو بار بار سنیں، اور ان حروف کو الف سے لے کر یا تک مخارج کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں، روز اس کی مشق کریں۔ اب ہم آج آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر اگلا سبق انہوں نے دیا ہے نقطوں کی پہچان، اور عربی کے اندر بہت سارے حروف جب مل کر آتے ہیں تو ان کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، ان کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، اور خاص کر ان میں سے 5 حروف ایسے ہیں کہ جن کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کا فرق ان کے اندر تمیز نقطوں سے ہوتا ہے۔ با، تا، تا، نون، یا، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب یہ مل کر آتے ہیں تو ان کی شکل بالکل ہو بہو ایک جیسی ہوتی ہے، نقطہ ذرا سا ادھر ادھر ہم کر دیں گے حرف بدل جائے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے نقطوں کی پہچان دی ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، تا کے اوپر 3 نقطے، نون کے اوپر ایک نقطہ، یا کے نیچے 2 نقطے۔ تو نیچے جو نقطے آتے ہیں، با کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، اور جیم کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے جب مل کر حروف آتے ہیں، لیکن جیم کی شکل ایک دم مختلف ہوتی ہے۔ جیم، خا، خا، ان 3 حروف کی شکل الگ ہوتی ہے، اور با کی شکل الگ ہوتی ہے، لیکن با اور تا کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو با کے نیچے ایک نقطہ، جب بھی کسی حرف کے نیچے ایک نقطہ ہوگا وہ با ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر اوپر 2 نقطے آتے ہیں تو وہ ایک حرف ایک ہے تا، تا، لیٹی تا،
उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, बा के बाद जो ता आती है उसको कहते हैं ता, लेटी ता, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। तो कभी भी इसको दो नुक्ते किसी भी हर्फ पर आएंगे तो वो ता होती है। उसके बाद तीन नुक्ते वाले दो हरूफ होते हैं अरबी के अंदर, एक ता, एक शीन। इसमें फर्क ये है कि ता के ऊपर शोशे नहीं होंगे, राउंड नहीं होंगे, लेकिन शीन के अंदर जब भी शीन आएगी उसके अंदर राउंड होंगे, उसको शोशे कहते हैं, वो होंगे। जिस शोशों के साथ अगर तीन नुक्ते लिखे हो तो वो शीन पढ़ी जाएगी। ये तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। शर्री के अंदर शीन है, उसके अंदर सोशे हैं, राउंड है। और जब ता आएगी कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी तो उसके अंदर सोशे नहीं होंगे। जैसे इसी सूरत के अंदर सूरह फलक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। तो यहाँ पर नफ्फासाति ता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है सोशे नहीं होंगे, राउंड नहीं होंगे, इसलिए ये ता है। उसके बाद एक नुक्ता ऊपर, तो कई हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर एक नुक्ता आता है लेकिन उनकी शक्ल एकदम मुख्तलिफ होती है, अलग होती है। एक सी शक्ल वाले जो हरूफ है, ये पांच हरूफ, इनके अंदर अगर किसी पर भी एक नुक्ता हो तो वो नून होता है। उसके बाद दो नुक्ते नीचे एक हर्फ है या, जिसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। ये नुक्तों की पहचान हम जहन के अंदर रखें। उसके बाद इन्होंने इम्तिहान दिया है कि अमूमन छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल अलिफ बा नहीं पढ़ा है, हुरूफ तहज्जी नहीं पढ़े हैं, या ऐसे लोगों के लिए कि जो पहली मर्तबा कायदा पढ़ रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है कि हुरूफ के अंदर क्या फर्क है उसकी आवाज में, तो हरूफ को पहचानने के लिए भी और उनकी सिफात में फर्क करने के लिए भी यहाँ पर इम्तिहान की शक्ल में हरूफ दिए गए हैं बीच बीच से। तो यहाँ हम देखेंगे पहले दो हर्फ एक सी आवाज वाले हैं, ता, ता। अब ये दोनों की आवाज एक जैसी है, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क है। इसी चीज को हमें जहन के अंदर रखना है कि जो नुक्तों वाली ता है, लेटी ता है, इसकी आवाज हमेशा बारीक रहेगी, इसकी आवाज हमेशा बारीक रहेगी। उसके बाद जो अगली ता है उसकी आवाज हमेशा मोटी रहेगी। तो पता ये चला कि दोनों की आवाज एक जैसी तो है लेकिन एक नहीं है, दोनों की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। पहली ता, लेटी ता, उसकी आवाज बारीक होती है और दूसरी ता की आवाज मोटी होती है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ता, इस तरीके से हम इसको फर्क करेंगे और बार बार मश करके इसका फर्क को जहन के अंदर बैठा लेंगे। अगले इन्होंने चार हरूफ ऐसे दिए हैं, ता, सीन, शीन, सौद। इन चार हरूफ की आवाज भी मिलती जुलती है लेकिन एक जैसी नहीं होती, चारों हरूफ में काफी फर्क होता है। पहला हर्फ है ता, इसके अंदर सीटी की आवाज नहीं आएगी, इसकी आवाज नरम रहेगी। ता, जबान की नोक को सामने ऊपर के दांतों के किनारे से लगाएंगे। शेख और की आवाज नहीं आ रही। ये हमारी आवाज, आ जी रही अब आ आवाज रही तो आ रही आवाज। ना। आ रही आवाज तो आ रही शेख। जी, तो सीटी की आवाज के बगैर इसको हम निकालेंगे ता। ये पहला हर्फ है। इसके बाद अगला हर्फ है सीन। सीन, ता में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ ता में सीटी नहीं आती वहां सीन में सीटी लाजमी आएगी और आवाज इसकी बारीक रहेगी, सीन। उसके बाद इसका अगला हर्फ है शीन। इस हर्फ की आवाज तमाम हुरूफ के अंदर एकदम अलग जुदा है। इसके अंदर शी की आवाज आएगी, शीन। अक्सर तलबा क्या करते हैं, सीन को शीन पढ़ जाते हैं और शीन को सीन पढ़ जाते हैं। ये फर्क कर जाते हैं, इससे हर्फ बदल जाता है, मखरज बदल जाता है, लफ्ज बदल जाता है और माना भी बदल जाता है, बिगड़ जाता है। अगला हर्फ है सौद। सौद की आवाज में भी सीन की तरह सीटी आएगी, लेकिन फर्क ये है दोनों के अंदर कि सीन की आवाज बारीक और सौद की आवाज मोटी होती है। जैसे सीन में जबर है तो सा, सौद में जबर है तो सौ, सा, सौ, सा, सौ। ये फर्क है। उसके बाद दो हुरूफ और दिए उन्होंने एक सी आवाज वाले, हा, हा। इन दोनों के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क है। वो ये कि जो पहली हा है, जिसको उर्दू के अंदर हम लोग बड़ी हा कहते हैं,
تو इस हा को अदा करने में मुंह से हवा हमारे ज्यादा निकलेगी। हा, और ये हा हलक के बीच के हिस्से से अदा होती है, बीच हलक से ये हा अदा होगी, और इसको अदा करने में मुंह से हवा ज्यादा निकलेगी। हा। इसके बाद जो अगली हा है, इसके अदा करने में मुंह से हवा बहुत कम निकलेगी, और ये सीने के पास जो हलक है वहां से अदा होगी। हा। तो इन दोनों में फर्क ये है, पहला है हा, हवा ज्यादा निकलेगी, दूसरा है हा। हा, हा। उसका बाद अगला हर्फ है खा। ये एक आवाज वाला एक ही हर्फ है। ये हलक के जो है तो आखिरी हिस्से से, आखिरी हलक से जो जबान की जड़ जहाँ खत्म होती है वहां से निकलेगी, आवाज इसकी मोटी होती है। खा, खा। उसके बाद अगला हर्फ है काफ। इसी के साथ काफ भी होता है। दोनों की आवाज में ये फर्क रहता है कि ये नुक्तों वाली जो काफ है, ये जबान की जड़ तालु से मिलेगी, और ये काफ अदा होगी। और याद रखें कि इसकी आवाज बहुत से तलबा हलक में ले जाते हैं, तो वो खा की आवाज में निकलती है या हलक से इसकी आवाज निकलती है, काफ काफ। ये गलत है। जबान की जड़ तालु से मिलकर काफ अदा होगी, और ये मुंह से इसकी आवाज निकलेगी, काफ। आवाज मोटी होगी, नुक्तों वाली काफ की आवाज हमेशा मोटी रहेगी, काफ काफ। उसके बाद मुंह की तरफ थोड़ा सा और हम जबान की जड़ से आएंगे, और बीच जबान और जड़ जबान के बीच का हिस्सा मिलाकर हम काफ निकालेंगे, काफ। इन दोनों में फर्क ये है कि पहले नुक्ते वाली काफ की आवाज मोटी होगी, और दूसरी काफ की आवाज जिसमें नुक्ते नहीं होते उसकी आवाज बारीक रहेगी। आगे इन्होंने चार हरूफ एक सी आवाज वाले और दिए हैं, लाल, जा, बहुत, वो। इन चारों में फर्क ये है कि राल की आवाज नरम होती है, सीटी की आवाज नहीं आती है, आवाज बारीक होती है। उसके बाद जा की आवाज में सख्ती होती है, और इसकी आवाज में सीटी की आवाज आती है, जा। अगला हर्फ है बहुत। इसकी आवाज एकदम अलग होती है, जबान की करवट मसूड़े से मिलेगी, और दाल की आवाज इसमें नहीं आएगी। जबान की लोग अगर हम सामने दांतों की जड़ से लगा देंगे तो ये दाद बन जाएगा, दाद। दाद नहीं है ये, बहुत बहुत। जबान की करवट बाई जानिब या दाई जानिब या दोनों जानिब मसूड़े से मिलकर बहुत अदा होती है, और आवाज इसकी हमेशा मोटी रहेगी। अक्सर तलबा इसके पढ़ने में सीटी की आवाज दे लेते हैं, जा की आवाज आ जाती है, जो बहुत बड़ी गलती है। बाद तलबा पढ़ते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन। बाद में सीटी की आवाज आ जाती है, जा बन जाती है। इससे हमें बचना, इसकी मशक करनी है। अगला हरफ है वा। वा की आवाज बगैर सीटी के आएगी, इसकी आवाज मुंह में भर जाती है, इसकी आवाज मोटी रहेगी, मुंह में भर जाएगी। जबान के नोक को सामने ऊपर के दांतों के किनारे से लगाकर बगैर सीटी के मुंह में आवाज भर कर हम अदा करेंगे, वा 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 वा। इसके बाद अगले दो हरूफ हैं, अलिफ, आइन। अलिफ मुंह के अंदर खाली जगह से अदा होती है, आइन बीच हलक से। और बाज तलबा आइन नहीं निकालते हैं, तो आइन हमजा बन जाती है, बीच हलक से नहीं निकलती, उसकी आवाज बराबर नहीं निकलती, तो वो हमजा बन जाती है, जिससे मायने पे बड़ा असर पड़ता है। जैसे हमने कल की क्लास में बताया था कि अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु, उसके अंदर पहले हमजा है, अलिफ पर जबर आ गया, वो हमजा बन गई। उसके बाद जो है आइन वाव पेश, ऊ, आऊ, आऊ। बात तलबा पढ़ते आऊ, आऊ, ये गलत है। तो हमजा और आइन में हमें फर्क करना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नून अगला हर्फ है, नून। नून के अंदर अक्सर तलबा ये करते हैं कि नाक में आवाज ले जाते हैं, इसमें वाव बत्ता पढ़ा जाता है, आगे आप पढ़ेंगे खींचा जाता है थोड़ा सा, नून। होठ हमारे गोल होते हैं, हम खींचते हैं इसको, तो खींचने में आवाज ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जबकि बाहर की तरफ इसकी आवाज आनी चाहिए। इसका नतीजा ये होता है कि कुरान मजीद के अंदर जहां जहां नून से पहले वाव मद्दा आया है, वहां वहां पर तलबा वाव मद्दा की आवाज को भी नाक में ले जाते हैं। तालमून, काफिरून,
मुस्लिमून, ये गलत है। नून की आवाज या वाव मद्दा की आवाज नाक में नहीं जाएगी। तो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस किस चीज की आवाज आगे जाएगी। अगला हर्फ है बा, जो आप अच्छे से समझ चुके हैं, दोनों होठ मिलकर बा अदा होगी और इसकी आवाज हमेशा बारीक रहेगी। पर इसके अदा करने में अक्सर तलबा ने जो आज भी गलती की और इससे पहले भी बार बार गलती की, वो उसको जहन में रखें कि बा अलिफ जबर बा है। इसके अंदर ना हा की आवाज आएगी आखिर में बा, ना हमजा की आवाज आएगी, झटका होगा बा, गलत। दोनों के अलावा अलिफ की आवाज आएगी बा, अलिफ की आवाज, आ की आवाज आखिर में आएगी आ बा। अगला हर्फ इसी तरह पा, पा में भी यही गलती करते हैं, या तो हा की आवाज आती है या हमजा के झटके के साथ आवाज आती है, तो इसमें भी अलिफ की आवाज आएगी पा। अगला हर्फ है गईन, गईन के अंदर अक्सर तलबा इसकी आवाज को मोटे ना करते हैं। तो गईन वो हर्फ है जो हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। जहां से फा निकलती है, हलक का आखिरी हिस्सा, यानी जबान की जड़ जहाँ खत्म होती है वहां से गईन अदा होगी, इसकी आवाज हमेशा मोटी रहेगी। या इसमें भी यही करना है कि न हा की आवाज आएगी, न हमजा की आवाज आएगी, अलिफ की आवाज आएगी। या ता, इसके अंदर भी यही करना है, न हा की आवाज आएगी न हमजा की आवाज आएगी, और ता की आवाज हमेशा बारीक रहेगी, मोटी नहीं होगी। मीम, दोनों होठ मिलकर मीम अदा होगी। अगला हर्फ है लाम, लाम को भी बास तलबा मोटा पढ़ते हैं। तो लाम वो हर्फ है जो असली जो लाम होगा, असल अमूमन जो लाम होगा वो हमेशा बारीक पढ़ा जाएगा, लाम। उसके बाद कहीं भी कुरान मजीद में लाम आएगा वो बारीक पढ़ा जाएगा। आगे ये सबक आएगा सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के। अल्लाह अगर कुरान मजीद के अंदर कहीं लिखा है या अल्लाह लिखा है, तो अल्लाह का लाम कभी मोटा पढ़ा जाता है कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो कायदा आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा जितने भी लाम हैं, जहाँ कहीं भी लाम आएगा उसकी आवाज हमेशा बारीक होगी। अगला हर्फ है दाल, इसकी आवाज भी अक्सर लोग मोटा कर देते हैं, इसको हमें मोटा नहीं करना है, इसकी आवाज भी हमेशा बारीक रहेगी। अगला सबक है मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। ये इंशाल्लाह हम लोग अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे, और इसको हम जब तक ऐसे ही पढ़ा देते हैं ताकि आप लोग इसको दोहरा लें, समझ लें। अलिफ, अलिफ की पहली शक्ल, अलिफ की दूसरी शक्ल, अलिफ की तीसरी शक्ल। बा, बा की पहली शक्ल, बा की दूसरी शक्ल, बा की तीसरी शक्ल। ता, ता की पहली शक्ल, ता की दूसरी शक्ल, ता की तीसरी शक्ल, ता की चौथी शक्ल। जीम, जीम की पहली शक्ल, जीम की शेख दूसरी शेख शक्ल। उर्दू पढ़ा रहे क्या? नहीं नहीं, इसी को पढ़ा रहे हैं, कायदे के अंदर भी शक्लें हैं। तो ये शक्लें आगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे तफसील से, कि ये शक्लें जब हुरूफ मिलकर आते हैं तो शक्ल उसकी बदल जाती है, कौन सा हर्फ किस हर्फ के साथ मिलकर आएगा तो उसकी शक्ल कैसी रहेगी, हमें ताकि समझने में आसानी हो जाए। बास तलबा शक्ल न पहचानने की वजह से लफ्ज को कुछ का कुछ पढ़ देते हैं, तो उसको इंशाल्लाह आप लोग जहन में रखिएगा। बारक अल्लाह फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।